بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی، طالبان نے ترکی سے مدد مانگ لی۔ وزیر اعظم عمران خان کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فون۔ افغانستان سے ابھرتے خطرات، روس اور چین کا مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ سعودی عرب نے کرونا ویکسین سائنوویک اور سائنو فارم کی منظوری کے ساتھ بڑی شرط عائد کر دی۔ ورلڈ بینک نے افغانستان کے لیے امداد بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ طالبان نے اسلحے کے بڑے ذخیرے کے ساتھ روسی ساختہ 100 ہیلی کاپٹرز پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، ملک میں تیل و گیس کے مزید ذخائر دریافت۔ ترجمان افغان طالبان نے پاکستان کو دوسرا گھر قرار دیتے ہوئے بھارت کو خبردار کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترک حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے ترکی کو کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالنے کی پیشکش کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ترکی کے 2 حکام نے خصوصی طور پر بتایا ہے کہ طالبان نے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے ترکی سے تکنیکی مدد مانگی ہے۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے کابل ایئرپورٹ سے اپنی افواج کا انخلاء شروع کر دیا۔ طالبان کی پیشکش کے کچھ دیر بعد ہی ترکی نے اپنی افواج کا انخلاء شروع کر دیا۔ تاہم طالبان نے اصرار کیا ہے کہ انقرہ بھی 31 اگست کی ڈیڈ لائن تک افغانستان سے فوجی انخلاء مکمل کر لے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اگر ترکی کو اپنے فوجی ہوائی اڈے پر سیکیورٹی کے مقصد کے لیے تعینات رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہ طالبان کو تکنیکی مدد مہیا کرنے پر رضامند ہوگا یا نہیں۔ ترکی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ طالبان کی مشروط درخواست نے حکومت کو ایک الجھن میں ڈال دیا ہے اور اب ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا۔ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد ترکی نے ہوائی اڈے پر تکنیکی امداد کے علاوہ سیکیورٹی مہیا کرنے کی بھی پیشکش کی تھی، جس پر طالبان نے ترکی کو بھی افغانستان سے افواج واپس لے جانے کا کہا تھا۔ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی افغانستان سے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے پینٹاگون کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ خیال ہے کہ طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو واضح کیا تھا کہ غیر ملکی فوجی انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ایک پرامن، محفوظ اور مستحکم افغانستان پاکستان اور علاقائی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ افغانوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے علاوہ ایک جامع سیاسی تصفیہ بھی آگے بڑھنے کا بہترین رستہ تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے سیاسی مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا بہترین رستہ ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بین الاقوامی برادری کو افغانستان کے لوگوں کی مدد جاری رکھنی چاہیے تاکہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے افغانستان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط نقطہ نظر کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے پاک روس تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا، جس میں پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस और चीन ने अफगानिस्तान से उभरते खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक कर लिया। रूस के सदारती महल क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें क़याम अमन की अहमियत और खित्ते में अदम इस्तेहकाम का फैलाव रोकने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान से मुमकिन दहशत गर्दी और मंशियात के फैलाव जैसे खतरात का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका जदोजहद तेज करने पर इत्तेफाक किया है। क्रेमलिन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने रूस और चीन के दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने दो चीनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोविक की मंजूरी दे दी, जबकि इनके साथ मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन की तीसरी खुराक लाजमी लेनी होगी। सऊदी खबरसा इदारे ने वजारत सेहत को बताया है कि वो अफराद जिन्होंने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म या साइनोविक की दो खुराकें ली हुई हैं वो मुमलिकत में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें इन दो खुराकों के साथ एक बूस्टर डोज भी लगवाना होगी जो मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 4 मंजूर शुदा वैक्सीन हैं, जिनमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडरोना शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। काबुल में तालिबान के कंट्रोल के बाद वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए तमाम मंसूबों की फंडिंग रोक दी। अदारे की जानिब से खदशात का इजहार किया गया है कि देखना होगा कि किस तरह तालिबान का कब्जा मुल्क की तरक्की के इम्कानात पर असर अंदाज होगा। ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए ये इकदाम बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की जानिब से अफगानिस्तान को अदायगियाँ मुअत्तल करने के चंद रोज़ बाद सामने आया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं। BBC को आलमी बैंक के तर्जमान का कहना था कि उन्होंने अफगानिस्तान की अमदाद रोक दी है और अपनी अंदरूनी पॉलिसियों और तरीक़ाकार के मुताबिक सूरत हाल की निगरानी और जायज़ा ले रहे हैं। उनका कहना था कि ताज़ा सूरत हाल पर आलमी बरादरी और तरक्याती अदारों से मुकम्मल राब्ते में है और अपने शराकतदारों के साथ मिलकर हम ऐसे मंसूबों और तरीक़ेकार की तलाश कर रहे हैं जिससे अफगानिस्तान की हमायत और तरक्की का प्रोग्राम जारी रखा जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान की दफाई सलाहियत में बहुत बड़ा इजाफा। तालिबान ने असले के बड़े ज़ख़ीरे के साथ रूसी साख्ता 100 हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रूस ने कहा है कि काबुल में कंधार में आने वाले तालिबान को रूसी साख्ता 100 हेलीकॉप्टर्स भी असला के दीगर ज़खायर के साथ मिले हैं। इस हवाले से रूस के सरकारी असला की बरामदात के सरबरा का कहना है कि अफगानिस्तान पर कब्जे के नतीजे में तालिबान को रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर भी मिले हैं जो कि इस्तेमाल के सिलसिले में मुख्तलिफ हालतों में है। बताया जाता है कि रूस के बने हुए ये MI-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अमेरिका ने अफगान मुसल्लह अफवाज के लिए खरीदे थे। रूस से इसके खरीदने की वजह यह भी थी कि Su-60 ब्लैक हॉक्स के मुकाबले में काफ़ी सस्ते और इन्हें उड़ाना भी निस्बतन आसान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुल्क में तेल और गैस के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। सूबा सिंध में मीरपुर खास के मकाम पर तवानाई के ज़खायर की दरियाफ्त 390 बैरल योमिया तेल और 6 लाख क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। तफसीलात के मुताबिक तवानाई की दौलत से मालामाल सूबा सिंध में मजीद तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने की खुशखबरी सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में मीरपुर खास के मुकाम पर तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। बताया गया है कि एक निजी कंपनी की जानिब से इलाके में जून के माह में ज़खायर की दरियाफ्त के लिए खुदाई का सिलसिला शुरू किया गया था। 2 माह की मेहनत के बाद बिलाखिर खुदाई वाली जगह से तेल और गैस का बड़ा ज़खीरा दरियाफ्त हो गया है। 3400 मीटर की खुदाई के बाद ज़खायर की दरियाफ्त के लिए कामयाबी हासिल हुई। इस हवाले से ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से बताया गया था कि ज़खायर से 390 बैरल योमिया तेल और 600 क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार देते हुए भारत को खबरदार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़िया किया है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, इसके खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ रूसी दौर से प्रोपेगेंडा हो रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गड़बड़ की कोशिश की गई तो रोकेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि काबुल को अपने जोरे बाजू से फतह किया है, पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि अमारात इस्लामी का अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर कब्जा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में अमन कायम किया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमें बड़ी तादाद में अफगानों की हमायत हासिल है। हम ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें तमाम अफगान शामिल होंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।